Namaskar, good evening. Welcome to NIMCJ Facebook Live program. And today we have a very special program. And the name of the program is Ask the Expert. On behalf of Vishwa Samad Education Foundation and National Institute of Mass Communication and Journalism, I, Dr. Shashikant Bhagat, the faculty of this institute, welcome you all the Facebook friend to this very engaging, very exciting program, Ask the Expert. And we all know that the entire world is locked down. We are struggling of so many things. We are also struggling what to do, what not to do. And in this crisis, the best thing is happening that we all are sitting at home and using the technology. And what we are doing using the technology, we try to communicate as positive as possible and sharing the right information to the right people. And we all know that health warriors are doing all efforts to save the lives of the people. Likewise, the media and mass communicators all are putting the right efforts to give the right information and handy information to all of us so that we are well informed every time 24/7. So in this program, I have joined with very eminent communication and media expert who have been doing excellent work in their life since so many years. And I like to introduce to all my guests here. With me, we have joined Mr. Nayan Dave, who is the special correspondent of Financial Express. We have Mr. Sanjay Chakraborty, Chief Marketing Communication Advisor, SK Consultancy. We have Mr. Janak Dave, who is the Bureau Chief of News 18 India. We have Mr. Niraj Harlalka, partner at LearnCheck360degree.com and the director at DNJK Technology Private Limited. Welcome to all my guests in this special edition, a special program. Can we have the video of all my guests here? Yes. Sir, thank you so much for joining in this program. Niraj ji, Sanjay ji, Janak bhai. Jai Shri Raman. Right. So, friends, today's program, I'll set the open to, give a foundation of discussion. That is why media is so important in our life. What a special media in different domains, like we have a print, we have electronic, we have advertising, we have film, we have digital media. All are doing very fabulous and fundamental job to inform the people and alert and inform them. Right. So I have made 5 primary points to explore. We'll try to understand from their perspective. So about the dynamics of their respective field. We also know that to join this field, special skills are required. So why skills are required to be successful in this field will be the second point. Third would be who can or how one can develop the competency and capability to perform this task of their respective field. And again, we know that today the academic institutions has very pivotal role to nurture the skills of the young budding communicators. And especially the final point would be the employment and career perspective in post-COVID era. So I'll invite first Mr. Sanjay Chakraborty to give 5-7 minutes of the foundation of how advertising works, and especially in this particular health crisis. Sanjay sir, over to you. Yeah. Good evening, everyone. Good evening, friends. Good evening, my co-speakers who are with me. I will tell you some fundamental thing what has happened in COVID and what is the next step which is going to happen after COVID. Now, what has happened? Advertising is actually communicating. So when you communicate about some product, about some service, about some person. But due to COVID, everyone was locked up in home. So the difficulty with communication was that how do I communicate to them? So what has happened is that suddenly the medium
the madhyam जो होता है आपका hello, the medium Yes, has sir. changed. Yeah, you can hear me, na? Everyone. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Fine. yeah. Can everyone be on the frame together? Okay. Can we have everyone in the frame? Yeah. Yes. Right. Sir. So what I was telling you that what has happened to COVID is that people didn't move out, they didn't go and buy anything, they didn't purchase anything. So the problem with the advertising was that how do we communicate and why should we communicate? Because if I communicate, there will be a chances of generating a want and consumer go and buy. But actually, they were not moving the market, and when they were not moving the market, the whole integration or the marketing communication tool ka jo balance hai, that went ulta. Basically, people were never focusing much on social media. A lot of my clients were never focusing on social media. They suddenly started talking about social media. They tried WhatsApp, and print and outdoors took a back end. And the other primary media which were used were social media, were WhatsApp and television. But the problem with advertising industry or advertising people was that how do I create a new ad? Because if you want to create a new ad, you need people to create that. So you are not having any people who will work for you for months. So the interesting part which happened was that people started thinking innovation with the existing material which they had, or being at the home. How can I communicate? They came out with new ideas. So that is the most wonderful part or the positive part of of such an pandemic which you have, and you start thinking about something which is innovative. Now lot many times we were never using this web conferences to talk to clients, and everybody wanted to have a physical presence of theirs. But this technology has saved a lot of money, a lot of time, and we can reach anywhere we want. That was the biggest thing in our communication which happened during COVID. Now if you talk about advertising is they achieve the objective of marketing. So if you're marketing something, advertising is support to do that. So what has happened now is all the medical equipments which were there has created the focus or had come into more pictures. So क्या हो गया कि आपके जो मास्क हैं या सैनिटाइजर हैं वो तो सब मार्केट में आ गए, लेकिन आप कम्युनिकेशन में डिफरेंशिएशन कैसे लाएंगे? तो उसके अंदर अभी नए नए मास्क आने लगे, डिजाइनर मास्क आ गए, आपके सैनिटाइजर होंगे वो आपके आयुर्वेदिक बेस्ड होंगे, तो इन सब की कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी. So that has suddenly started happening in the market, and all the other things, all the brands which wanted to be in the minds of consumers, what they started doing, they started talking about social messages. They started putting up social messages like ki COVID se bachna chahiye. You will see the brands flourishing in the television and social media talking about the COVID factor. So this is overall what has happened in the advertising industry. But I am confident that since now we are opening up slowly, everything is moving up. In the initial days, the brands will talk about keeping precautions about COVID, but slowly and slowly they'll start talking about their own products, which is a good sign, which will start happening, because without communicating, you cannot sell or you cannot market any product in this world. So communication is the most important thing, which is advertising. So you may ignore advertising for a time being, but you cannot stop advertising. And when you advertise, your medium may keep changing, your medium of communication, because it depends on the consumer. What consumers are consuming at this point of time will be the focus point. So they were not moving out. हमारे consumer बाहर नहीं निकल रहे थे, सोशल मीडिया की तरफ जा रहे थे, तो entire budget और entire communication माध्यम जो है वो आपका सोशल मीडिया हो जाता है. The moment they will start coming out, outdoor will create prominence. Your other mediums will start creating slowly the prominence. So I'm hoping to have a best of it, and soon I'm hoping that everything will be normal. Absolutely Yes. right, sir. I mean, I remember that in every your presentation you mentioned that the primary role of the advertising is to communicate first, then everything else followed, and Yeah. rightly you pointed here. So now I like to come to Mr. Nayan Dave. Sir, welcome to this program, and I have already introduced you. So I'll come to you to know the dynamics of print media, as we have already experiencing. Hello, sir, you getting the voice? I think some tech glitches is there. So we'll come back to Nayan sir later on. Now I'd like to invite Mr. Janak Dave. And
try to understand the dynamics of electronic media, and especially in the news section. Janak ji, you have been in this profession for news, television news for so long time, and you experiencing that how this entire news consumption and news creation part have changed. So आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है किस तरह से नए नए रूप में नए नए इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहा है सर। या शशिकांत भाई गुड इवनिंग। दरअसल वही कहना चाहूंगा जो लोग इससे साथ जुड़े हैं फेसबुक से कि व्हाट वी स्टार्टेड 18-20 years back and today is completely changed, scenario has completely changed. So somewhere हम कह सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या बदलाव आया। शुरुआत का दिन मुझे अभी याद आता है, मैं आपको बताऊं कि जब टीवी जर्नलिज्म शुरू हुआ तो ऐसा था कि मतलब आपने जो किया वही माइलस्टोन हो गया, क्योंकि ना कोई सिखाने वाला था, हर कोई चीज आपको सीखनी थी, अपने बलबूते पर आपको जो लगता था वही आप करते थे। इंटरव्यू किस तरीके से करना था, कोई बुक्स नहीं थी उसके लिए कि आपको 1-to-1 किसके साथ करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, ये सारी चीजें थी। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया। एक बेबी स्टेप्स के तौर पे नहीं कह सकते, शुरुआत में जर्नलिज्म शुरू हुआ तो कई बार गिर भी जाते थे, फिर खड़े होकर संभलते थे कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था, गलतियां भी अक्सर करते थे। तो वो सारी चीजें थी। 18-20 साल पहले का जर्नलिज्म और आज के जर्नलिज्म में अगर कंपैरिजन करना चाहेंगे तो जो हमारे साथ या हमारी पीढ़ी में के जो जर्नलिस्ट हैं उनको पता है कि वो दौर किस तरीके का था। शशांक भाई वो दिन भी आपको याद होगा कि जब फोनिंग करना होता था, हमें 2002 में मुझे याद है जब मैं दिल्ली में था, तब जब हम फोनिंग करते थे तो अवर्ली बुलेटिन हुआ करते थे और अवर्ली बुलेटिन में आपको केवल रिकॉर्डेड बुलेटिन के तौर पे रिकॉर्डेड फोनर आपको करना होता था। एंकर आपको पहले बता देते थे कि जी आपको आप बता दीजिए। अब आपके पास 50 सेकंड है, 60 सेकंड है, आपको 50 सेकंड में सारी चीजें वाइंड अप करनी है, पूरी की पूरी चीज रैप अप करके दे देनी है कि इसमें ये हुआ वो हुआ, और वो 1 घंटे बाद वो खबर टीवी पर आती थी। और आज के दौर में इंस्टेंट आप अब कुछ भी हो रहा है, जैसे हम ही बात कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से लाइव का कॉन्सेप्ट है, फेसबुक से लाइव कर रहे हैं या इससे लाइव कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से मीडियम है हमारे पास। तो कंप्लीटली सिनेरियो और वो हमने अपनी नजरों के सामने देखा है। नई पीढ़ी ने वो शायद जो तकलीफें थी उस जमाने की, बड़े कैमरे, इतना भारी कैमरा लेके खड़ा रहना और उसके साथ ट्राइपॉड के साथ चलना, वो हर्डल्स थे, लेकिन वो भी एक दौर था। और आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी और टेक्नोलॉजी के चलते हर 3-4 साल में इतना बड़ा बदलाव आया टीवी जर्नलिज्म में कि वो काबिल तारीफ है कि शुरुआत 2002 से करें और 2019 का या 20 का साल अभी का देखें, काफी बदलाव। मोटे तौर पर कहें कि लाइव अगर करना होता था पहले तो बड़े बड़े डीएसएनजी वैन हुआ करते थे। शशिकांत भाई आपको भी याद होगा, आपने भी बहुत दौर देखा होगा, नीरज भाई और संजय भाई ने भी देखा होगा। और अब हम केवल मोबाइल से सीधा लाइव कर देते हैं। तो एक सिनेरियो कैसे चेंज होता है, केवल टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से नहीं, जर्नलिज्म में भी काफी बदलाव आया। खबरों के मामले में पहले एक समय होता था शशिकांत भाई कि जब हम जर्नलिज्म में जो कोई एक स्टोरी को अगर पकड़ लेते हैं तो उसके तह तक जाते थे। एक इन डेप्थ रिपोर्टिंग जिसे हम कह सकते हैं कि उस इन डेप्थ रिपोर्टिंग को हम लोग देखते थे, उसको करते थे। उस रिसर्च बेस्ड स्टोरी में हमें कई दिन लग जाते थे, पहले हमें बकायदा उसका रिसर्च करना पड़ता था, किसका इंटरव्यू लेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें होती थी। और अब फास्ट का जमाना है, व्यूअर को भी फास्ट सी चीजें चाहिए, जो भी खबरें हैं वो तुरंत 100 खबरों में समेट के आप पूरा न्यूज बुलेटिन दे दीजिए। तो ये बदलाव है बड़ा। किसी के पास वक्त नहीं है, आप अगर रिसर्च बेस्ड स्टोरी लंबी करने जाएंगे तो शायद वो लोग इतने नहीं जुड़ेंगे। हो सकता है तर्क लोग ऐसे भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इन डेप्थ रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, लेकिन जो समय के अभाव में जो नई पीढ़ी है वो शायद उतना वक्त नहीं देना चाहती। उनको खबरों को मामले में फास्ट, और सबसे बड़ी जो एक कंपटीशन भी कहें और सब एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक कॉम्पिटिटर के तौर पे सोशल मीडिया सबसे बड़ा। पहले ऐसा था कि केवल टीवी जर्नलिज्म एक ही जरिया होता था जहां खबरें होती थी। आपको भी वो दिन याद होगा कि बिन लादेन की जो हत्या हुई या उनको मारा गया यूएस फोर्सेस के द्वारा, वो खबर सबसे पहले ट्विटर पर आई थी और उसके बाद टीवी में वो खबरें दी थी।
तो आज वो भी चेंज, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी चीजें टीवी पर आए, और वो भी एक जर्नलिज्म का तरीका है। न्यूज पोर्टल किस तरीके का आ गए हैं, वेब पोर्टल भी आ गए हैं, तो टीवी अकेला नहीं है, टीवी के साथ भी कई कई जो मीडियम है वो साथ जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सा दायरा हुआ है। हाँ, अब खबरें इतनी हैं कि आपको उसमें खंगाल कर अपने व्यूअर को अच्छी और सचोट जिससे कहें या सही तर्कबद्ध जो खबर है वो देनी है। और सबसे बड़ा जो मैं आपको शशिकांत भाई कहें, आपने जो व्यूअर जो अपने साथ जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ा जो आपका मुद्दा है वो है आपकी विश्वसनीयता। अब इतने सारे बाजार में लोग हैं, खबरें हैं, मीडियम हैं, तो ऐसे में विश्वसनीय खबरें कौन देता है? आप भले ही 2-5 मिनट बाद खबर दें, लेकिन विश्वसनीय खबर दे, ये बेहद जरूरी है। चूंकि अब खबरों का भी अखबार है और साथ साथ में मीडियम का भी अंबार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लीजिए, प्रिंट, डिजिटल, कितना अब डिजिटल के लोग भी हमारे साथ हैं तो वो बेहतर बताएंगे इस चीज को। लेकिन टीवी और डिजिटल अब एक साथ होते जा रहे हैं, और टीवी अब सिमट कर छोटे स्क्रीन में तब्दील होता जा रहा है। तो ये सारी भी चीजें हैं। तो 18-20 साल पहले का जर्नलिज्म और शशिकांत भाई अभी का जर्नलिज्म, आसमान जमीन का फर्क है। काफी कुछ बदलाव आए, रंग आए, उसमें बेहतर टेक्नोलॉजी आई, न्यूज जर्नल चेंज हुए, खबरों के हिसाब से खबरें वही की वही रही, लेकिन दायरा जो था वो बढ़ता गया। और जैसे मैंने कहा, अब विश्वसनीयता सबसे बड़ा मापदंड है। जो विश्वसनीय होगा वही इस कंपटीशन में टिक पाएगा। शशिकांत भाई, ओवर टू यू। एब्सोल्युटली, आपने इंटायर जो टेक्नोलॉजी ब्लेंडेड न्यूज कम्युनिकेशन की आपने बात कर दी, यू राइटली सेट द टोन ऑफ टेलीविजन news. And now it's time to go to the the main crux. We are now, and the print and television is nowadays not considered the front line communication tool. I think digital has surpassed everything. Yes, I'm rightly coming to Mr. Niraj Harlalka. Niraj ji, we know that digital has surpassed everything. I mean, none of the single entity who can say that I am not on this digital platform. How you see the entire amalgamation of digital media who absorb everything at one place? So I would like to understand the dynamics of this digital media, and of course the technology is playing a very pivotal role. Niraj ji. जी, सो आई थिंक जब डिजिटल की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आज के दिन डिजिटल में आया है कि वो पैसिव के साथ साथ एक्टिव भी है और लिंक्ड भी है। सो इफ यू लुक एट द ट्रेडिशनल मीडिया व्हिच इज देयर, लाइक अगर आप न्यूज़पेपर देखें, रेडियो देखें, टीवी देखें, तो इनमें एक मिसिंग लिंक था जो दर्शक है वो केवल देख पाता था। और आप देखिए रेडियो पर भी जो शोज होते थे बहुत कम होता था कि जो ऑडियंस है उनके साथ वार्तालाप होती थी, बट ज्यादातर जो था ये वन साइडेड था। डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कम्युनिकेटिव हो गया है ज्यादा। लाइक आपने अगर कोई भी न्यूज अगर आपका आया है तो न्यूज़पेपर वो बढ़ गया सारा दिन, उस पर और कोई प्रक्रिया नहीं है। बट जैसे जनक भाई ने कहा कि लादेन की हत्या का न्यूज वहां पर आया और तुरंत आपने देखा पूरी आग लग गई सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर किसी ने उस चीज को फैलाया। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को दिखाएंगे। कंज्यूम जो आप करते थे डिजिटल पे, जो कंजम्पशन का पैटर्न है, इसकी डिजाइन भी काफी हद तक वायरलिटी के हिसाब से हुई है। आप देखिए कि न्यूज़पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा किसी को पकड़ के वापस वो न्यूज़पेपर पूरा देना पड़ता है, जबकि डिजिटल पे आपने उसे एक लिंक बनाया और उसने आपने अपना पैकेजिंग भी कर सकते हैं आप उस पे। तो आई थिंक जो एक्टिविटी बढ़ा है आज, जो आप समझिए कि न्यूज, प्रिंट, टीवी, सबका जो सम्मिश्रण हो गया है, डिजिटल वाज केपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग टुगेदर। आज के दिन आप देखिए एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है डिजिटल के पास जो टेलीविजन के पास नहीं है, वो है कि डिजिटल एक फीड की तरह आता है और ये फीड आपके लिए रुका रहता है। वो नोटिफिकेशन जब तक आप उसे पढ़ते नहीं है, वो नोटिफिकेशन आपके पास पड़ा रहता है। अगर आपने 3 दिन अखबार नहीं पढ़ा तो आपको कोई नहीं बताता है कि वो अखबार आपको वापस पढ़ना, और शायद ही किसी ने वापस पढ़ा। लेकिन जैसे आपके ईमेल्स की तरह है, वैसे ही सोशल मीडिया पे फीड्स ऐसा हो गया है कि वो लीनियर है, और फीड बेस्ड होने के कारण ऐसा कुछ है नहीं कि वो आपके नजर से हट जाए।
ज्यादा से ज्यादा कई लोग ऐसे हैं कि दे आर कंप्लेनिंग दैट देयर इज ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डिजिटल पे ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन होगा क्योंकि आपका जब तक आपको एडिक्ट बना दिया गया ऑलरेडी, जब तक आप एक एक नोटिफिकेशन को क्लियर नहीं करेंगे तो इट इज लाइक समबडी स्टैंडिंग ऑन योर हेड कि मेरे को पढ़ो, आप मेरे को देखो, मैं बाकी हूँ, मैं रेड हूँ, या ग्रीन डॉट्स या रेड डॉट्स आपके सर पे लगा दिए गए। तो डिजिटल का ये जो चीजें हैं, ये जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप कंज्यूमर बिहेवियर का जो इन लोगों ने सम्मिश्रण किया है, और जो प्लेटफॉर्म्स ने बहुत बड़े बड़े पीएचडीज को लेके आए हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर पे काफी काम किया है, तो आप देखिएगा ह्यूमन बिहेवियर ये है कि अगर कोई काम दिया जाए वो नहीं करेगा तो उसको शायद जिंदगी भर कई काम याद रहेगा। तो ये याद दिलाने वाला प्रक्रिया यहाँ पर काफी सक्रिय है, उसके कारण आप देखिए डिजिटल इतना पावरफुल है। और अब आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत प्रसिद्ध जो जर्नलिस्ट है जिनकी बहुत अच्छी से लोग जिनका मानते हैं, जैसे अभी जनक सर ने कहा कि कौन न्यूज दे रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल में क्या होता है, जैसे ही आपको पता चलता है कुछ अच्छा लगता है, आप सिर्फ पैसिवली सुनते नहीं है, आप उस चीज को आप अपने डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। आप व्हाट्सएप के हजारों ग्रुप बने हुए हैं अब लोगों के, तो वो क्या है इंस्टेंटली, और उनको मजा आता है। आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में शायद कुछ लिखा नहीं हो, लेकिन वो अपने सोसाइटी में अपने सर्कल में काफी माने जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह की न्यूज क्यूरेटर्स जिनको कहा जाता है, वो अच्छी न्यूज पीसेस निकाल के लोगों को देते हैं जो उनको लगता है कि अलग अलग ग्रुप के लिए वो अलग अलग क्यूरेशन कर रहे हैं। और ये सारा एक तरह से अनपेड क्यूरेशन हो रहा है, इसकी सिर्फ सोशल करेंसी है। सो आई थिंक ये जो पूरा डिजिटल का जो माहौल है, इट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी, and I think the biggest factor why digital is able to take up a lot of these channels। और अभी हमने कोविड के दौरान देखा कि जो प्राइमरी, जैसा आपने कहा शशिकांत सर, की जो प्राइमरी फीड है वो फीड बन गया आपका, आई थिंक व्हाट्सएप हैज प्लेड अ मेजर रोल। और उसके अलावा जो बाकी लोग सोशल पे थोड़ा एक्टिव है, जैसे बच्चे इंस्टाग्राम पर है, तो उन्हें हमें लगता है कि बच्चों को नहीं मालूम है, बट जो न्यूज आज हमारे पास आ रही है वो उन्होंने पढ़ लिया है, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे भी उसके मेम्स बन गए हैं या कुछ ना कुछ तरीके से उन तक भी पहुंचा है। तो आज आप देखिए राइट फ्रॉम अ 50-year-old पर्सन टू अ 14-year-old पर्सन, वो न्यूज इक्वल तेजी से बढ़ रहा है एंड ऑन डिमांड न्यूज आ गया है। एक और चीज है, जैसे मान लीजिए किसी को छोटा पीस मिला है लेकिन उस चीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना है, तो अब न्यूज में आपको वेट करना पड़ेगा कि उसके बारे में फिर कोई न्यूज पीस आए, या अखबार में आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। टीवी पे आप देखिएगा वही चीज चलता रहता है। डिजिटल में एडवांटेज ये है कि आपको लिंक्स भी दिए जाते हैं कई बार, जिसमें आप जा करके उस चीज के बारे में और खुद अध्ययन कर सकते हैं। तो इट मेक्स इट रियली रियली नेविगेशन काफी इजी है। जिसको छोटा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अगले इन्फॉर्मेशन पे चल जाता है, जहां उसकी रुचि बढ़ी। सो इट्स लाइक आपको ग्राउंड को कैसे देखना है वो आप डिसाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे कारणों से डिजिटल मीडिया एक काफी पावरफुल मीडिया आ गया है, और क्षमता बहुत अच्छी है। डिजिटल की क्षमता है कि हर एक तक पहुंचे और पर्सनलाइज वे में पहुंचे, और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन दुनिया की इंपॉर्टेंट है वो पैकेजिंग लोग खुद कर रहे हैं, अपने नाम से कर रहे हैं। तो चीजें काफी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है डिजिटल, और मुझे लगता है आगे और डिजिटल का बहुत सक्रिय काम होगा आगे। बिल्कुल, आज जिस तरह से हम लोग स्टे एट होम हो गए हैं, लाइकवाइज विद दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी मीडिएटेड कम्युनिकेशन, वो मीडिया एट होम जैसा हो गया थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, इजंट इट? राइट। नयन सर हम आपको सुन सकते हैं? यस राइट सर, हम ऑडियंस और यस सर, ऑडियंस और हम सब पैनल मेंबर आपका इंतजार कर रहे थे कि सब उत्सुक है आपको सुनने के लिए, बिकॉज प्रिंट जो है वो कहा जाता है कि मीडिया का बॉस है, मीडिया का फादर कहा गया है प्रिंट को। एंड इसकी इम्पोर्टेंस तो दिस कोविड पेंडेमिक क्राइसिस के दौरान हमें देखने को मिला है कि जो क्रेडिबिलिटी है वो अगर कोई बिल्डअप कर पाया है और लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा आ पाया है तो बेस्ड ऑन दी प्रिंट रिपोर्टिंग। व्हाई? बिकॉज जिस तरह से कोविड एक रैपिड मल्टीप्लायर के रूप में फैल रहा है, उस तरह से बोगस इंफॉर्मेशन और फेक इंफॉर्मेशन और फेक कंटेंट भी उसी तरह से फैल रहे हैं। सो नाउ प्रिंट हैज टेकन इट्स right step, especially in India, to build the credibility among the readers,
राइट तो सर हम प्रिंट की जो इम्पोर्टेंस है, प्रिंट मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है, उसका डायनेमिक्स वो एक 5 से 7 मिनट में आपसे जानना चाहेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट्स. Right. First of all, having been in the newspaper business or newspaper industry for the past 2 decades, questions are being bombarded at me about the future of print media, right? Frankly speaking, print media is increasingly becoming a costly medium, and as other speakers said, that because of cheap medium or जो सस्ता है, people don't have to shell out more money to get news through digital medium and or television. तो मेरे हिसाब से प्रिंट मीडिया को अपने आप को री-इन्वेंट करना पड़ेगा, right? And more descriptive, because we are having more time than compared to digital platform. तो थोड़ा description हमारा ज्यादा होना जरूरी है. That is what I believe. And what to say, because the scenario is really gloomy. Advertising is, revenue is declining for the print media. I don't know how it would, survive in future. Yes, All right. Shashikant, I don't have much Right, to say sir, right, because sir. the is not that good. I cannot say more about print media. Credibility Yeah. factor is always, the cost factor is also connected to it. So both the thing is But sir, very, very important. Absolutely, we basically in the Indian people are based on culture. Our belief system is the based on culture, and ethics में हम सबसे ज्यादा मानते हैं. और जब ethics और culture में मानते हैं तो credibility सबसे ज्यादा आता है. In my point of view, I think the print will thrive in a multiplier way, especially in India. We'll see. But I am a firm believer. I am a very active, content observer of the print media. अब क्विकली हम सभी पैनल मेंबर के पास आना चाहेंगे और क्विक आंसर आपसे चाहेंगे. या सर लास्ट कन्वर्सेशन जो सभी रिस्पेक्टेड स्पीकर्स ने की है, आई वांटेड टू सम ऐड समथिंग. जनक भाई, what he rightly said that you need to have authenticity of the communication or the report which is coming out has to be authenticated, and it has to be genuine enough, or it has to be ethical enough. So people have come out with new business models where they just judge whether this news is correct or not. They print that, and they are earning money out of it. So they will come and say this news is fake or this news is not fake. And there's a company in Ahmedabad which is doing very well in just telling you that the news is fake or correct, right? So that is one more area of business which has just popped in because of proliferation of so many fake news. Somebody comes up and say, okay, I'll be an endorser who will tell you that this news is correct or unethical or unbiased है कि नहीं, वो बताता है. So this is one addition which I wanted to do. I'll come to Niraj. Niraj has said that because he's a digital man, so he'll always say about digital very frankly. But if you talk about advertising firm believes that no medium is substitute to anyone. They are complement to each other. What a print media can do, a television cannot do. What a television can do, a digital medium cannot do. अगर यही बात होती ना शशि जी, अगर यही बात होती तो Amazon और Flipkart प्रिंट में ऐड नहीं देते और वो टेलीविजन में नहीं आते. अगर उनको लगता है कि डिजिटल से सब कुछ हो जाता है तो डिजिटल में रहते. Why are they coming into outdoors? Why are they coming into print? Why are they coming into television? The reason is that they know that through digital they cannot reach all the target group which is going to happen. And coming to Nayan Bhai has rightly said that print media का future क्या है, जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे ये पता चल रहा है. आई एम नॉट द अथॉरिटी, बट व्हाट सजेशन एंड व्हाट ओपिनियन आई कैन गिव और व्हाट इज सीन द मार्केट, दैट नाउ print media has to integrate with many other things. Like print media may be integrating with events, or they will integrate with digital, they will integrate with outdoor, and then the business model will run. Because in isolation अकेले में प्रिंट चलाना शायद आज के तरह की मुश्किल हो जाए, बिकॉज का प्रोडक्शन कॉस्ट ही सबसे हाई होगा, राइट? हमारे तो कई जगह पे मीडिया के में ये क्वेश्चन होता था कि नेम ए प्रोडक्ट विच इज सोल्ड लेस देन द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, एंड इट वाज न्यूज़पेपर, राइट? बिकॉज न्यूज़पेपर अगर 16 रुपए में प्रिंट होता है बिक रहा 2 रुपए में वो.
तो अगर हमको सर्वाइव करना है और एडवर्टाइजिंग कम है, तो यू हैव टू कम आउट विद आइडियाज व्हिच कैन इंटीग्रेट अदर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक इवेंट कर रहे हैं उसके बारे में आप छाप रहे हैं, एंड यू डू ए इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग एंड देन गो इनटू द मार्केट. Yeah, that was my Absolutely. Right, sir. addition to. Yeah. And secondly, Right, sir. So I would like to add one thing. नीश एरिया में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. संजय सर, नाउ आई विल कम टू यू. सो अभी सभी एक्सपर्ट के पास में क्विकली आऊंगा और थोड़ा एक वेरी समराइज वे में आंसर आपसे चाहेंगे कि संजय सर, आई विल कम टू यू एंड वुड लाइक टू नो to become the very successful advertiser or to work in the advertising industry, what sort of skills are required to be successful in this advertising field? Quickly, sir. Only three things which are required. One is that you have to be good in communication, because you are into the business of communication, so you need to be very good in communication, right? Second very important thing is that how much you love your consumers. You have to understand the consumer behavior has been, if understood well, you can be a very good advertising guy. And third, always have the craving, or I can say always have the lust of disruption, कि जो रेगुलर चल रहा है वो नहीं करना है, उसके अलावा क्या कर सकते हो. ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन, second is your lust to new ideas, and also, what did I say, the second one? I said that the first one was the communication, and second one was disruption, and consumer behavior. You need to be focusing on consumer behavior, and you have to see what others can't see. That is what you become a successful advertising person. Right. जनक भाई, टेलीविजन जर्नलिज्म आने के लिए आज के डेट में अगर आप 10 में से 8 यंगस्टर्स की ये ओपिनियन पाएंगे कि आई वांट टू बिकम द एंकर, आई वांट टू बिकम द कैमरामैन, आई वांट टू बिकम द टीवी रिपोर्टर, तो इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या ऐसे स्किल सेट की जरूरत होती है, एंड हाउ द न्यूकमर्स, द वर्डिंग जर्नलिस्ट शुड प्रिपेयर देमसेल्फ टू एंटर इन दिस lucrative and very dynamic field? जनक भाई. देखिए शशिकांत भाई, इसमें ऐसा है कि हम जब आए, मैं सीधी कंपैरिजन इसलिए करना चाहूंगा, हम जब आए तब बिल्कुल पता नहीं था कि फील्ड कैसा है, बस टीवी पे आना है और जर्नलिज्म अच्छी तरीके से करना है. अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है. जो भी आ रहा है मोस्ट वेलकम, नई पीढ़ी को आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो कहीं कमी लग रही है वो तैयारियां नहीं होती, या कुछ तैयार होके बच्चे नहीं आते. शुरुआत में अगर आप उसको 15 घंटा काम करो, हमने वो वक्त दिखाया जब हमें 10-12 पीढ़ी को तुरंत लिक्रेटिव और स्क्रीन पे तुरंत आ रहा. तो मैं सबसे कहूंगा, अगर आए, मोस्ट वेलकम. एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी वो पैशन. आप में कैसे, किस तरीके से आप क्यों आना चाहते हैं, पहले तो तय करें कि आप क्यों आना चाहते हैं इस फील्ड में. केवल पैसे कमाना है और ग्लैमर पे आना है तो प्लीज मत आइए, लेकिन कुछ अच्छा करना है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, अच्छी स्टोरीज करनी है तो जरूर आइए. डिजिटल भी अब टीवी के साथ साथ मिल रहा है तो और मजबूती मिलेगी उसको. तो रिसोर्स तो बाद में भी हो जाएंगे, पहले आप ये तय कर ले कि आपको जब आना है तो क्यों आप आ रहे हैं और आपका विजन क्या है. आप, क्योंकि मुझे मेरा दौर याद आ रहा है कि मैं जब इस फील्ड में आना चाहता था, मैं तो कंप्यूटर फील्ड का बंदा था और चला आया इस टीवी चैनल में, चूंकि तय करके आया था कि मुझे जाना है और मैं कुछ अच्छा करके जाऊंगा, और फिर समय मिला, अच्छा करते रहे और आगे भी करते रहेंगे. तो सबसे बड़ी बात है आपने जो कही कि जो भी बच्चे नए, जो इस यूथ में, जब भी आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जब आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो मोस्ट वेलकम. बहुत अच्छा फील्ड है, आप आए, काम करें, लेकिन तय करें कि आप किस सोच के साथ आ रहे हैं. आपके वो जज्बा होना चाहिए कि आप अच्छी तरीके से वो जर्नलिज्म करना चाहते हैं. केवल टीवी, स्क्रीन, ग्लैमर और पैसे के हिसाब से आ रहे हैं तो ये एक ख्याल जो अगर आगे बढ़े. Right. Niraj ji, I like to come to you. And again, as I said, that the digital has amalgamated everything. So it's a very important to understand what would be the basic skill set required
to enter into this field and make a career? So if you look at digital skills, it is very aligned to the 21st century skill set which is required. Like if you look at the 21st century skill sets, so digital is very aligned to that. I think I'll agree with Sanjay sir and say ki the first thing has to be communication, because that is what the base of whether it is digital or any other media. Second important is definitely you have to have collaboration skills. So it is not just about your internal thing, but digital skills will require a lot more collaborative skills. So you can suddenly, so like there was a very good learning which I had once in a LinkedIn event. So where LinkedIn was also able to use collaboration with WeChat when they entered China. So they did not think LinkedIn, after becoming a very big company also, they looked at collaboration when they wanted to enter new uncharted territories. So communication, collaboration, creativity. Now I think 21st century में सबसे ज़्यादा important रहेगी creativity, because everything is already there. So आपका जब तक पैकेजिंग अलग नहीं होगा, आप क्रिएटिव तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी जो स्किल्स है उसको पैकेजिंग करने के लिए या उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा. उसके अलावा आई थिंक कॉग्निटिव स्किल्स की भी बहुत रिक्वायरमेंट होगी, जो सिर्फ नॉलेज बेस नहीं है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक प्रोसेस में लेके आना. सो कॉग्निटिव स्किल्स विल बी आल्सो वेरी एसेंशियल. ये सारे मैं जो आपको बता रहा हूँ 21st सेंचुरी स्किल्स है. इसके अलावा मेटा कॉग्निशन. सो आपका कॉग्निटिव स्किल्स के साथ साथ आपको, सो फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट हो गया एक मेन, लेकिन उस कंटेंट के अराउंड की इंफॉर्मेशन जो होती है, जो मेटा होती है, उसके बारे में भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी स्किल सेट डेवलप करनी पड़ेगी. एंड आई थिंक फाइनली इन सब के साथ साथ हमको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ डायनामिक फील्ड है, यहाँ प्रॉब्लम्स रोज के हैं, नए चैलेंजेस. फॉर एग्जांपल आज फेसबुक को प्रॉब्लम हो रहा है कि टिकटॉक उससे तेजी से बढ़ रहा है, लोग उससे बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटर्स आ गए टिकटॉक में, जो फेसबुक आज तक नहीं कर पाया. क्रिएशन के मोड में वो टिकटॉक ने कर दिया. तो अब फेसबुक में जो लोग बैठे हैं उनको एक चैलेंज है, ये एक प्रॉब्लम है जो उनको सॉल्व करना है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं, लोगों का क्रिएशन कैसे बढ़ाएं. So I think these are some of the essential skills which are required in the 21st century and in the digital marketing and digital field per se to have a great career here. Essential skills here. Right. Nayan sir, I like to come to you. 5W1H and inverted pyramid is the fundamental, method and technique to write the news. बट जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेविएट हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी इनहांस हो रहा है, सो द राइटिंग पैटर्न हैज आल्सो चेंज्ड इन द जर्नलिज्म. सो व्हाट critical things that you would like to suggest to the new budding mass communicator would like to shape up to the career in print media? At least these 3 or 4 or 5 things should develop before entering into this field, especially in the print news. So I will now compare print media with the the test match format of cricket. Right. It is like a test match where your technique will be considered. Your technique of writing, incorporating your views in your articles or news stories. That is, and any format of media, content will remain the king. So if you have a basic fundamental is sound, then anybody who can play very good cricket at test match level, he can perform well in one day or 2020. So basic should be sound. So according to me, the writing skill is the will consider for the print media. All right, and the final round of this pointers, I'd like to come to every member. I'll start with Sanjay sir. Sir, एक कहा गया है, मीडिया में भी काफी बार इसके बारे में लिखा गया है कि when the industry and academia helped each other and try to collaborate each other,
तो उसमें जो टैलेंट है, जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट से पढ़ करके निकल रहा है, उसको अपने स्किल को प्रूव करने में मदद मिलती है. So, what would be the ideal role, or where you see the confluence point of the professional body who are practicing the advertising and the academic institute? So, academic institute में एक रोल किस तरह से होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयार होकर के निकले एंड इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करे? As you rightly said, that it needs a good amalgamation of corporate as well as academic institution. Academic institutions is also very, very important in our life. They have to at least give me the basics of education, and the corporate world should help you in adapting those knowledge into the market. So if you have a very good combination of both, then the student who comes out from that institute can thrive in the market. The problem with our generation is that they have an academic knowledge, but they have no knowledge of corporate world, so which becomes very difficult, because it is of no use to corporate when the person comes with just a theoretical knowledge. This theoretical knowledge has to also be adapted. The institute has to also evolve themselves and come out with a curriculum which is required in the corporate world. So the job of the faculty, job of the people who are in the academic world, has to keep researching what is required. Like my co-speakers are saying that it is changing. Like what Janak Bhai said, that the 20 years back जो journalism थी वो आज नहीं है. तो आज के तारीख में जर्नलिज्म चाहिए, उसकी तरह से आपको एकेडमिकली आपके जो कंटेंट है उसको मोल्ड करना पड़ेगा, उसके सिलेबस को मोल्ड करना पड़ेगा. एंड यू टेक द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट्स to tell people that what has been taught in academic world, see how do you adapt it, how do you use it in the market. And when the combination comes out, when they are very clear about it, then they become a seasoned or a recruitable professional which comes into the market. Otherwise, it is just an academic knowledge, nobody will consider. And invariably, it is happening that people come with academic knowledge. They may be toppers of the college, but if they don't have any corporate knowledge, any field knowledge, it is of no use to anyone, because the school again starts again there. For another 6-7 months or another 1 year, you have to keep teaching the person. But if he has a corporate world experience, so it was helpful for the corporate world also to recruit them. I hope my other co-speakers also agree to this. जनक भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा. दो चीजें क्विकली जानना चाहेंगे. एक कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट का रोल क्या होना चाहिए, और दो ऐसे कॉन्सेप्ट काफी इमर्जिंग हुए हैं इस फील्ड में. एक कहा गया है मोजो, दैट इज द मोबाइल जर्नलिज्म एंड मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, राइट? ये दो आंसर क्विकली आपसे जानना चाहेंगे. बिल्कुल शशिकांत भाई, इसी बात को मैं, संजय भाई जो बात बता रहे थे बिल्कुल वही, मैं उसी बात को बार बार कह रहा हूँ कि जो आपने शुरुआत चूंकि पूरे प्रोग्राम का बेस रखा उसमें कि पहले क्या था और अब क्या है, तो मैं मेरी बात कहूंगा, इससे एक प्रैक्टिकल व्यू में आपको जानकारी मिले. हम जो लोग 20 साल पहले या 18 साल पहले जो पढ़े, वो हमें कभी जर्नलिज्म में काम नहीं आया. तो बेहतर अब ये होगा कि चूंकि टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म, अभी का जो डिजिटल जर्नलिज्म है वो पूरा टेक्नोलॉजी के आधार पर है, तो हम सिलेबस को कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है, इंस्टीट्यूट में इस तरीके से बनाया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही, उन चीजों को उसके साथ जोड़ा जाए. ऐसा ना हो कि 2 साल तक एक छात्र जहां पर पढ़ा है इंस्टीट्यूट में, जब वो 2 साल बाद फील्ड में आता तब उसे किसी बात की नहीं है. सोशल मीडिया तो वो अपने हिसाब कर ही लेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ रहने का इंस्टा है, टम्बलर है, ये सारी चीजें हैं, वो अपने हिसाब से कर लेगा. लेकिन अगर हम सही मतलब टीवी जर्नलिज्म की बात करें, उसमें आ रहे बदलाव, उसकी टेक्नोलॉजी, डिजिटल जर्नलिज्म की जरूरतें, उसमें किस तरीके से स्क्रिप्टिंग होती है, टीवी की स्क्रिप्टिंग क्या होती है, इन चीजों को साथ में लेकर जोड़ें. क्योंकि 3 साल पहले की टीवी की स्क्रिप्टिंग और अब की टीवी की स्क्रिप्टिंग, आसमान जमीन का फर्क आ गया है. अब मोबाइल जर्नलिज्म, जैसे आपने कहा कि हम पहले थे तो पूरा डीटीएच वो डिश उसके साथ लेके जाते थे, जहां हमें लाइव, फिर बाद में आया कि लाइव लेके जाते थे. अब चूंकि हम सीधा मोबाइल जर्नलिज्म कर रहे हैं, पिछले 1 महीने की मैं मेरी ही बात करूं कि मोबाइल जर्नलिज्म से ही मैं पूरा मेरे मोबाइल के अंदर ही मैंने लाइव फिट कर दिया, और उसी तरीके से मैं जहां भी चाहूं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना होता था, गाड़ी में एक साथ 3 लोग नहीं होने चाहिए थे, अकेला होकर रिपोर्टिंग करना था. आई थिंक कुछ नेटवर्क डिस्ट्रप्शन हो गया है, राइट?
में हो रहा है, बेहतर होगा कि हम हमारा जो करिकुलम है उसको इस तरीके से सजाए, उसको इस तरीके से बनाए कि जब स्टूडेंट आपका फील्ड में के लिए आता है या फील्ड किसी भी फील्ड में जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद रहे और वो ऐसा ना महसूस करे कि जो फील्ड में आया है वो कुछ नया ही है और वो कुछ पढ़ा ही। राइट राइट आई एम ऑडिबल? नीरज जी, या जी। एब्सोल्युटली, नाउ वी आर गेटिंग। नीरज जी, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट का क्या रोल होना चाहिए इस टेक सेवी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए? जी देखिए, अभी तक जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट थे उनका एकमात्र रोल था, मतलब आज से 5 साल पहले तक उनका एक ही रोल था, नॉलेज प्रोवाइड करने का। अब आई थिंक नॉलेज के साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को स्किल पे भी जोर देना होगा और डिस्पोजिशंस पे भी जोर देना होगा। मतलब आज के दिन आप देखिए कि जिस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, सो मिलेनियल्स को स्पेशली आप देखिए तो उनका करियर काफी शिफ्ट होता है, तो उसमें इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स और नॉलेज, बट उसके साथ साथ उनकी जो माइंडसेट पे जो वर्क करने का काम है, वो माइंडसेट या डिस्पोजिशन पे काम करने की भी एक जिम्मेदारी अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे आ गई है। आई थिंक इस चैलेंज को मीट करने के लिए जो रास्ता आई थिंक प्रूवन मटेरियल है आज के दिन, वो है कि भाई आप वर्क बेस्ड नॉलेज दें। जैसे मान लीजिए इंटर्नशिप्स होना लग गया है आजकल, आई थिंक इसमें NIMCJ जैसी ऐसी इंस्टीट्यूट भी काफी आगे हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन है, वो भी बहुत जरूरी है। आपके जो फैकल्टी के जो स्किल सेट्स हैं, जो रिसर्च बेस्ड है, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री बेस्ड जो फैकल्टी है, जो गेस्ट लेक्चर्स फैकल्टी का जो होता, बिकॉज जो कनेक्ट्स है, आई थिंक इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा बच्चे कनेक्ट करेंगे, उनको एक ये पता चलेगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटर्नशिप्स के थ्रू उनको वो एक्सपीरियंस का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और जो गेस्ट फैकल्टी वगैरह आते हैं उनके थ्रू उनको सवाल का जो जवाब, आई थिंक ऑल्सो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का एक और बहुत बड़ा रोल होगा कि वो मोर फ्रॉम थिंकिंग बेस्ड टू डूइंग बेस्ड में चीजों को लेके आए। मतलब जहां तक हो सके वो डूइंग बेस्ड को अपना स्ट्रॉन्ग करे, लाइक सिर्फ एकेडमिक मार्क्स नहीं, उसके साथ साथ में इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड, लाइक समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स में जैसे इंडस्ट्री भी उस चीज को वेट करता है, वैसे ज्यादा से ज्यादा करिकुलम की वेटिंग हो बाय द इंडस्ट्री, जो करंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस, बट उसकी पेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। क्या राइट, नयन सर आपके पास आना चाहेंगे, और खास करके प्रिंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट का क्या आइडियल रोल क्या होना चाहिए? बेसिकली तो इंडस्ट्री एकेडेमिया रिलेशनशिप मोर इंटेंसिव, जो उसका स्पान थोड़ा बढ़ाना चाहिए। दूसरा यह है कि स्टूडेंट्स को का माइंडसेट इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि दे शुड बी रेडी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। 2 साल के बाद अगर वो निकलेंगे तो वो पता नहीं कौन सा नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तो उसका माइंडसेट उस तरह से होना चाहिए कि दे शुड बी रेडी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। राइट। अब थोड़ा सा कुछ ऑडियंस के क्वेश्चन आए हैं, व्यूअर के क्वेश्चन आए हैं, वो हम लोग ले लेते हैं, एंड देन आई विल हैव सम 2-3 पॉइंट्स टू आस्क। नीरज जी, आपके लिए क्वेश्चन है हितांशी अरोड़ा का। वो पूछ रही हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? आई थिंक कंटेंट मार्केटिंग तो सदियों से चला आ रहा है। मीन जब से प्रिंट आया है, जब से एडवर्टाइजिंग आया है, हर चीज में कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, और डिजिटल में भी कंटेंट कोर है। मतलब आप जो कोर चीज है वो तो कंटेंट ही है। अब आप उसकी मीडियम भले ही चेंज कर दे, आप वीडियो कर दे, जेपेग कर दे, आप उसको एक ऑगमेंटेड रियलिटी की तरह प्रेजेंट करें या वर्चुअल रियलिटी करें, बट कंटेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्रिएटिविटी स्किल्स, इमेजिनेटिव स्किल्स, और साथ साथ में जिस टारगेट ऑडियंस को आपको डील करना है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं और एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से आपको अपना कंटेंट की प्रेजेंटेशन मीडियम चेंज करनी है। बट एंड ऑफ द डे कंटेंट हैज टू बी अपीलिंग, इट हैज टू बी इंफॉर्मेटिव,
it has to be entertaining. और डिजिटल मीडिया में आप जितना मींस आई थिंक कंटेंट तो बेस है ही उस चीज का भी, विदाउट कंटेंट डिजिटल मीडिया भी कुछ नहीं है जी। राइट। जनक भाई, आपसे एक ऑडियंस पूछ रहे हैं, मीत शेलार, वो पूछ रहे हैं कि मोबाइल जर्नलिज्म का और मल्टीमीडिया जर्नलिज्म का स्कोप किस तरह से देख रहे हैं। जनक भाई, हेलो। जनक भाई, आवाज पहुंच रहा है क्या? हाँ, बहुत टूट के आ गया आपकी आवाज। ठीक है, बताएं। हाँ, एक मीत शेलार का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि मोबाइल जर्नलिज्म और मल्टीमीडिया जर्नलिज्म का स्कोप किस तरह से देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज के लिए, ये टीवी मीडिया में। अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेट अब जो शिफ्टिंग हो रहा है, आप उसको जो भी नाम दे दे, चाहे मल्टीमीडिया कह लीजिए या मोबाइल जर्नलिज्म, ये सारा कुछ डिजिटल की ओर जा रहा है। और जिस तरीके से हमारे बाकी जो पैनल पे हैं, उन्होंने जिस तरीके से डिजिटल के बारे में बताया, वही चीज हो रही है। एक डिजिटल एक पर्याय के तौर पे होगा। टीवी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन टीवी के साथ चूंकि टीवी स्क्रीन है वो थोड़ा छोटा जरूर होगा, लेकिन जो वाला जो एक दशक है वो मैं मानता हूं कि डिजिटल ही है। और डिजिटल में जो लोग आएंगे उसको आप, मैंने जैसे कहा कि मल्टीमीडिया ले लीजिए, आप मोबाइल जर्नलिज्म कह लीजिए, सारी चीज, लेकिन कहना तो वो डिजिटल ही है। सारी चीजें डिजिटल पर जाएगी, शॉर्ट्स, क्रिस्पी और विश्वसनीय, यही दौर आने वाला है। ऐसे में आप कैसे सरवाइव करते हैं वो उस पर ही डिपेंड है, किस मीडियम पे जाना चाहेंगे, वो चाहे प्रिंट में जाए, टीवी में जाए, डिजिटल, क्योंकि अब प्रिंट भी डिजिटल में काफी कुछ आ चुका है। जैसे नयन दवे सर ने कहा कि अब रेवेन्यू का एस्पेक्ट है, संजय सर ने कहा रेवेन्यू वहां पे भी है तो यहाँ भी मिलेगी, लेकिन जो स्क्रीन है वो बड़ी थी वो अब छोटी होती जा रही है, और उसके चलते हर घर तक पहुंच गए हैं, हर हाथ तक पहुंच गए हैं। बात मीडिया, जब टीवी के लिए न्यूज देखने के लिए आपको टीवी तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये आप सबको मिल रहा है। तो ऐसे में उसको डिजिटल ही नाम दे, चाहे वो आप मोजो कह लीजिए या मल्टीमीडिया जर्नलिज्म कह लीजिए, लेकिन डिजिटल के दिन सुनहरे हैं आने वाले समय में, और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नए रूप रंग में होगा आने वाला 5 साल, आने वाला दशक। Sanjay sir, there is a very important question to you. What do you think the artificial intelligence and machine learning are going to reshape the advertising role? Why? Because the creativity and technology now blending completely. So how do you see the future ahead? Yeah, this will definitely happen. The technology of AI will help the advertising to float in a more perfect and targeted. I'll give an example. I was talking to someone from US, and he's into the business of AI, and he was telling me that in Walmart in US, they established a very big screen, television screen, बहुत बड़ा screen रखा है. And when a consumer enters that shop or the showroom, that computer detects, they show some ad films, and when you observe that ad films, they detect 30 of your आपके जो एट्रीब्यूट्स है, 30 एट्रीब्यूट्स रिकॉर्ड करता है, और जैसे रिकॉर्ड करता है तो वो आपके बारे में जान लेता है। जब आप वॉलमार्ट के अंदर जा रहे हैं दुकान में, तो आपके हिसाब से ही ऑफर्स आते हैं आपके मोबाइल पर, आपके हिसाब से ही वो आपको ऑफर्स देगा। आपके अगर आपको डेनिम पसंद है तो आपको डेनिम के बारे ही बताएगा। बट कम्युनिकेशन जो है, अल्टीमेटली आपको खुद को क्रिएटिविटी तो करनी ही पड़ेगी। द टेक्नोलॉजी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर, बट देन द क्राफ्टिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग। So this both will go in parallel, and it cannot substitute the other thing. Like आप अगर ऐसा बोलते हैं AI आ गया तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, वो नहीं हो सकती, और क्रिएटिविटी है तो AI की कोई जरूरत नहीं है, वो भी गलत है। तो टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली हेल्प यू, इट विल हेल्प यू इन शार्पली टारगेटिंग द ऑडियंस, एंड आपका जो कम्युनिकेशन है वो वेस्टेज कम होगा आपका, और आप समझ ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। Right, and this will be the last question, to Nayan sir. सर, क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स डू टू स्टे रेलिवेंट इन द न्यू मॉडर्न मीडिया मार्केट टू स्टे एम्प्लॉयड इन द लॉन्ग रन? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे प्रोग्राम, एंड देन we'll take a quick remarks. Sir. Right. So I would say keep updating yourself.
technology wise, your writing skill wise, your knowledge, keep on updating your knowledge. This is the only way you can survive longer in the media. Otherwise, print is, I don't know what would be the future of the print, but if you keep on updating yourself, you can switch on to print, to digital, to electronic media, or any other future kind of media. So this is the only way you can survive. Okay, and the lastly, this will be the quick remark from all the panel members. Sir, एक ऐसा है कि everybody now in the fear mode. The market, student, everybody in the government system, everybody is fearing that what will be the future of the society, the country as a whole completely. So एक थोड़ा सा आप कहते हैं कि एक माइंड बॉडी सोल को ईज करने के लिए एक आपका ऐसा एक मैसेज जो सभी को, चाहे विद्यार्थी हो, मार्केटर हो, एम्प्लॉय देने वाले हैं, एम्प्लॉयर हो, सबको कि दिस इज द टाइम, वी होल्ड द नर्व, the brighter time will come and everything will be easy. We'll start from Sanjay sir. Quick remark, quick message to all of us. Yeah, very interesting question. Now I'll tell you quickly what has happened because of COVID के आने से दो तरह के कंज्यूमर्स आपके बाहर आएंगे आने वाले फ्यूचर में. एक कंज्यूमर वो होगा जो थोड़ा डिप्राइव्ड है, उसको लगता है कि यार 2 महीने से मैं कुछ नहीं किया, 3 महीने से कुछ नहीं किया है, बिन डिप्राइव्ड, काफी चीज में कर नहीं पाया. तो आई थिंक व्हेन द मार्केट ओपन्स he will be consuming double or the triple what he was earlier consuming. So that type of one of the consumers or one type of consumer will be in the market. So the moment those type of deprived customers come in the market, everything will float double what you were doing earlier. So अगर आप कम्युनिकेट एक कर रहे थे, आपको 4 बार कम्युनिकेट करना पड़ेगा. अगर आप एडवर्टाइजिंग एक बार कर रहे थे तो शायद आपको कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा. So the market will open 3-fold, 4-fold. And there is another type of consumers who are contented. वो उसको पता है कि जिंदगी में कितनी जरूरत है वही यूज करने का. तो आपको ये देखना है कि किस तरह के कंज्यूमर आप हैं, और आई एम श्योर बोथ टाइप ऑफ कंज्यूमर सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. सो ये तो टाइम बिंग आपका कोविड जो है, इट इज जस्ट टाइम बिंग, एंड स्लोली व्हाट इज हैपनिंग अभी भी आप देख सकते हैं, जब से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया है, द मार्केट हैज फ्लरिश्ड, मार्केट हैज स्टार्टेड ओपनिंग अप, पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू द मार्केट एंड परचेसिंग. और वो जो डिप्राइव्ड टाइप का कस्टमर है बहुत ज्यादा है हमारे देश में. सो यू डोंट हैव टू वरी, द थिंग्स आर जस्ट फॉर टाइम बिंग and it will improve, but I am confident about it. But yes, this COVID time, you should have, or you might have used it to come out with new ideas. It was a great opportunity for all of us to think new innovation and come out with new thing, right? So आज जो अब तक नहीं सोचा था वो आप सोचने लग गए हैं. So that is the good thing which has always happened, and I think that is the future. Sir, any valuable message to student and interns? Yeah, not to worry, and as pre-COVID and post-COVID, I tell you that वो जो स्टेटमेंट है ना आपका स्टीव जॉब्स का, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ. और जब आप जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आप हमारी कंपनी में आएंगे तो आप क्या करेंगे, तो उसका जवाब होता है सर हम सीखेंगे बहुत. अब वो भूल जाओ, अभी बताओ कि मैं कंट्रीब्यूट क्या कर सकता हूँ. सीखना तो सभी सीख जाते हैं, ठीक है ना. जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, सीखने जाते हैं तो आप पैसे देते हैं. जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप सीखने के पैसे नहीं देते, पैसे लेते हैं. तो इसलिए अच्छा है कि आप ये बताएं कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकेंगे. आपकी चिंता उस तरफ होनी चाहिए, ना कि सीखना तो ऑटोमेटिकली होगा ही. सो यू डोंट हैव टू गेट डिप्रेस्ड एट ऑल, इट इज जस्ट टाइम बिंग. बिकॉज मेरे पास भी काफी इंटर्न्स आए जो बोलते हैं कि सर हम फील्ड में तो काम नहीं कर सकते हैं, हम ऑनलाइन करेंगे. सो नाउ वी ऑल हैव टू थिंक वेरी इनोवेटिव एंड ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं. बिकॉज if I survive, my team survives, right? So everyone has to think together. Right. Yeah. Same question to Niraj ji. Yeah, I think adversity को सबसे बड़ा innovation opportunity कहा जाता है. The bigger the adversity, the more innovation should prosper. And I think it is a great time for everybody to look at it from that perspective. A lot of startups came up after the 2008 recession in US, and some of them have become really big. So people who take adversities as opportunities, I think Slack के जो एक co-founder है उनका एक काफी अच्छा statement है इसके ऊपर कि it teaches you how to be resilient. So I think resilience को लेके चलना है. जैसा संजय सर ने कहा, आपके जो ideas है अब execute करने का time है. You cannot just stay with your ideas. So I think life का ये बड़ा lesson है सबके लिए. Procrastination अगर कोई कर रहा है कि मौका मिलेगा तो करेंगे, शायद मौका ना भी मिले कभी, तो जो दिमाग में है वो कर लेना चाहिए. सो मेरा मैसेज तो यही है, पॉजिटिव रहो,
not with COVID, but with your ideas and good thoughts. और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, हाइजीनिक रहो, लेकिन अपना काम करते रहो और उस काम में प्रोक्रेस्टिनेशन को सबसे पहले हटा दो. जो करना है वो अभी करना है. और ऑल्सो एक और चीज है जो आप समझिए, बड़े बड़े जो ऑथर्स है, जैसे गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, ये जीई के सबसे सक्सेसफुल सीईओ का बुक है, काफी इंटरेस्टिंग बुक है. सो गुड का टाइम गया. आई थिंक लेट्स डू समथिंग ग्रेट. दैट इज माय मैसेज टू ऑल स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स. Right. Nayan sir, key message to especially the journalism student and who are doing interns. They are looking for their future. See, yes. When electronic media, when television came, people said that now print media will die. Then digital media came. So print has already seen challenges, and on an optimistic tone, I would like to say that print will survive, and it will be, it will reinvent itself to fit in the new age market. That is what I am saying. Absolutely. And the last but not the least, Janak bhai, key message, valuable message to especially the journalism student and those who are doing internship right now and they are thinking for their bright future. बिल्कुल, मैं वही कहूँगा, बेहद पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कोविड तो आया और चला भी जाएगा. हमें रहना है और अच्छे तरीके से जर्नलिज्म करना है. तो बाहर की दुनिया, खासतौर पे जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनसे खास बच्चों को कहना चाहूंगा, बाहर की दुनिया बेहद खूबसूरत है. हम भी एक जमाने में कभी छात्र हुआ करते थे. आज भी वो जिस मकाम पर पहुंचे हैं वो काफी मेहनत करके पहुंचे. मेहनती बन के आइए, पूरी दुनिया आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है. जर्नलिज्म बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें एक दुनिया के तौर पर और इस क्षेत्र में आपका वेलकम है. एडवांस होके आइए. जैसे सर और बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि हमें अगर एडवांस नहीं रहेंगे, तकनीक के साथ नहीं रहेंगे, तो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है क्या कुछ दुनिया में हो रहा है. ऐसे में हमें एडवांस होना है. मोस्ट वेलकम टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. और आइए, साथ में रहेंगे. और मेरी कोई जरूरत हो आप तो कभी भी मुझे, शशिकांत भाई से मेरा नंबर लेके आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं. मैं कोई भी मदद करने के लिए आपको तैयार हूँ. I think this is the same question asked by two audience. One is Bhavisa Makhijani and Deepak Bhatia, and I hope both the audience have got their answer. So now it's time to wrap up. I think to conclude, I like to say this message. I think this is the time where we should not look for the GDP and numbers and statistics and all that. Its nature has given a chance to start a very fresh thinking, fresh everything. And with this note, I thank to all my panel members who have joined and spent the time and shared their valuable knowledge to all of us. And here I am, Dr. Shashikant Bhagat. Sir, thank you so much. Sanjay sir, Niraj ji, Janak bhai, Nayan Dave sir. You really made possible to understand everything right from print to the digital. And we look forward to know more information, better information in coming time. So it's time to sign off, everybody. Thank you so much. Stay home and enjoy your life and look the future bright. Thank you so much. Namaskar. Thank you.